we'll continue. So all the distinguishing features of class Aves we have completed. Okay, now let us see some examples. So for all the phylum and the groups that we have been discussing, I told you one common point, that whenever any particular group is asked as a short note question, please mention the points which are unique to that phylum or group. That has to be mentioned. Okay, like if you're writing about class A's and if you don't mention about feathers and wings, obviously you will lose marks. Okay, so that you have to take care. See the examples. Now some of them are given in your book, some are extra ones which I'm showing you. So as many possible, if you remember, that will be good. Okay, parrot you know very well. Okay, parrot ko bolte hain Sittakula. Okay, scientific names and all, it's fine. As much as you remember, that's okay. These are examples of birds that can fly. I've segregated into different groups and showing you. So the ones which can fly. तो उसमें this one is parrot, you know very well. हम लोग उसको pet के form में भी रखते हैं. It has got a very good voice and a nice color, bright green color. Okay. Vulture you know very well. Very important organisms for the ecosystem. इनको हम लोग बोलते हैं saprotrophs. They feed on dead and decaying matter. Okay, but nowadays what is happening? Vultures are declining in number. The reason is they are feeding on dead bodies, and the animal dead bodies also has got a lot of chemicals because of all the different ways in which we are putting chemicals into the environment. Okay, तो उसके वजह से vultures के शरीर में भी इतने chemicals जा रहे हैं. There is a term called biomagnification. Okay, because of which now their numbers are decreasing. Okay, peacock you know very well, very beautiful feathers, and with such, even with such feathers they can fly very nicely. Okay, I remember somewhere in 2016 किसी काम से गुजरात गया था मैं, and one of the Sundays like we planned a visit to a nearby village. गुजरात राजस्थान में peacocks बहुत हैं. So there was one small village nearby. In the summer season we went, and I was there in the evening. It was a very peaceful day. So evening somewhere around 6 o'clock, nearing sunset, there were 3 or 4 peacocks I started hearing. और वो गांव के एटमॉस्फेयर में पीकॉक का आवाज इतना सुंदर लग रहा था. And then suddenly I saw 2 peacocks flying from one tree to another. इतना मजेदार लगता है पीकॉक को उड़ते हुए देखना, with its huge mass of feathers. Okay, so whenever you get a chance, ये सब देखो and इसको admire करो, appreciate करो. Correct? See the different colors. ये देखो इसका color, sunbird. Okay, अपने बॉम्बे के आसपास में you have कर्नाला bird sanctuary, पनवेल के पास. Okay, that's a very beautiful place. It's a bird sanctuary, a natural forest area जिसको गवर्नमेंट ने डिमार्केट किया है टू मेक अ बर्ड सेंचुरी. तो वहां पर ये सनबर्ड्स बहुत देखने को मिलेगा. स्मॉल बर्ड, फोटो जूम करके लिया हुआ है, बट इट्स अ स्मॉल बर्ड एंड यू विल फाइंड इट वेरी कॉमनली देयर. सी द ब्राइट प्लूमेज कलर, एकदम ऐसा सन बर्न हो गया जैसा लगता है. ओके, एंड दिस इज अ वेरी टैलेंटेड बर्ड, किंगफिशर. करेक्ट, क्या टैलेंट है इसके पास? Yes. Be on the video, everyone. फिश अच्छे से पकड़ता है. Not only that, वो बहुत अच्छे से डाइव मारता है पानी में. ओके, इतना बढ़िया तरीके से डाइव मार के पकड़ते हैं. सबसे पहले तो पानी के किनारे रहेगा, उसको नजर आ जाता है फिश कहाँ पर है. एंड फिश ऑब्वियसली डोंट रिमेन एट वन प्लेस इन द वाटर. देखा है मैंने. यस, बहुत एकदम ऐसे स्विफ्ट आता है और फिर चला जाता है. एकदम ऐसे डाइव मारेगा, फटक से पकड़ के निकल जाएगा. So it looks very beautiful, and there are very, बोलते हैं ना, amateur bird watchers. मतलब प्रोफेशनली वो ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं होंगे. बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं. द वंस हु डू इट साइंटिफिकली उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं. डॉक्टर सलीम अली इज अ वेरी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट इन इंडिया. तो वो प्रोफेशनल्स जो करते हैं वो अलग है, बट दोज हु आर नॉट इवन इन दिस फील्ड, देयर आर मेनी पीपल हु आर पैशनेट अबाउट वाचिंग बर्ड्स. ओके, तो वो लोग सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना बर्ड्स को इन एक्शन देखना है, तो इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर 5 AM और समथिंग, 4 o'clock 5 o'clock के आसपास जाने का, समवेयर नियर एनी वाटर बॉडी.
यू विल फाइंड बर्ड्स। अपने डोंबिवली के आसपास देखो कितने बर्ड्स डॉक्यूमेंटेड है, रेती बंदर, खाड़ी वगैरह सब जो है ना अपने यहाँ पे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ बर्ड्स। अर्ली मॉर्निंग कैमराज लेके जाने का एंड जस्ट कैप्चर, यू माइट कम अक्रॉस समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, बट यू रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दैट, कि वहां छुप के बैठना है, बिल्कुल आवाज नहीं करना है एंड जस्ट वॉच। एंड जरा सा भी आवाज आया, कैमरा का फ्लैश भी नहीं आना है, बिकॉज बर्ड्स गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, एंड देयर आर सम पीपल हु डू समथिंग रॉन्ग, प्लेबैक कॉल्स बोलते हैं उसको, कि बर्ड्स नजर नहीं आ रहे तो वो लोग बर्ड्स का आवाज निकालेंगे, so that the birds will come out from somewhere। ये कभी नहीं करना है when you're in the nature, okay, because it's like a wrong number you're creating। birds अपने calls पे बहुत dependent है, male birds will assume कि कोई female bird है कहीं पर and it will come out, okay, तो ये कभी नहीं करना, उसको playback calls बोलते हैं। तो kingfishers are able to catch fishes very nicely, उसका नाम भी बहुत बढ़िया रखते थे लोग, okay, and then this is something very interesting, very nicely उसके नाम रखे हुए, see the pose, okay, उसको बोलते हैं love birds। and you will always find them in a pair। केज वगैरह में सब देखो बहुत फेथफुल रहते हैं। आजकल थोड़ा जमाना बदल गया, कभी कभी 3-4 भी एक साथ दिख जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके, बट नॉर्मली ये पेयर में नजर आते हैं, ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लव बर्ड्स। बट इसका भी एक चीज है कि दे आर सच ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड आइडियली बर्ड्स आर नॉट सपोज्ड टू बी केप्ट इन केजेस, करेक्ट। तो ऐसा केसेस हुआ है कि पकड़े गए लोग वेयर दे कैच स्पैरोस एंड स्पैरो के शरीर को लव बर्ड्स के जैसा कलर करते, पेंट मारते, एंड देन दे सेल इट इन द मार्केट कॉलिंग इट एज लव बर्ड्स। इमेजिन द टॉर्चर दैट द बर्ड्स आर गोइंग थ्रू। नेचर ने इतने अच्छे से नेचुरली पेंट करके भेजा है, तो उसको अलग से हम केमिकल डाल के करेंगे, एंड दैट टू जस्ट फॉर आवर प्लेजर, दैट इज समथिंग रियली इनह्यूमन थिंग टू डू, ओके। आई हैड विजिटेड सिंगापुर 7-8 years बैक, ओके, वहां पर बर्ड पार्क है, जुरोंग बर्ड पार्क, वेरी फेमस। इतना बढ़िया तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन किया है जुरोंग बर्ड पार्क में कि इट्स लाइक द बर्ड्स आर नॉट इन अ केज, इट्स अ ह्यूज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एंड along with the birds you are also inside the cage। वहां लोग ऐसे टूरिस्ट जाते हैं तो the birds are just walking and flying around you। birds will come and sit on your shoulders, they come and sit on your head, but it's fun। it's only that the people should take the understanding that you are not supposed to touch them or lift them, okay, because if you try to catch them then they will attack you। that is how interesting they are। तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ होना चाहिए। इंडिया में अगर ऐसा करेंगे तो सोचो क्या हो जाएगा, हर किसी के बैग में एक एक बर्ड जाएगा घर पे, राइट। so these are some examples। then similarly ये देखो और कितने, that the list goes endless actually देखा जाए तो, करेक्ट। कैनरी बर्ड, सी द कलर, ऐसा लगता है अभी स्वर्ग से निकल के आया, नाइस, इसलिए वो कलर को भी नाम दिया कैनरी येलो करके बोलते हैं, ओके। हॉर्न बिल, सी दिस, सी द बीक, इतना बड़ा मुंह लेके चलता है वो। दिस इज द बर्ड विद द लार्जेस्ट बीक, ओके, हॉर्न बिल। बर्ड ऑफ पैराडाइज, सी द फेदर्स, एकदम वो अप्सरा बोलते हैं ना वैसे लग रही है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, नाम भी बराबर रख दिया एकदम। एंड इफ यू यूट्यूब में कभी वीडियोस देखना, बर्ड ऑफ पैराडाइज का डांस, लिटरली डांसेस लाइक एनीथिंग, मून वॉक वगैरह करते हैं, कहाँ से सीखा ना जाने, इट इज इन देयर जीन्स, करेक्ट। सो दिस इज सच टैलेंट, लाइक इन सब के सामने देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग, वी हैव जस्ट वन डैम पीस ऑफ सेरिब्रम, नथिंग एल्स। बाकी सारा टैलेंट इन लोगों को दिया हुआ है, करेक्ट। दिस इज द हमिंग बर्ड, यू आर अवेयर, among all the birds this is the smallest bird, hummingbird। and why it is called the hummingbird? hummingbird क्यों बोलते हैं? you can see its wings, the flapping of its wings is so fast, about 100 times in a minute।
उसके वजह से वो हमिंग साउंड क्रिएट होते हैं. दैट इज व्हाई द नेम इज हमिंग बर्ड. Very tiny bird, and this is the only bird which can fly backwards. Okay, ये देखो, a very unique bird. ऐसा लगता है मुंह के अंदर किसी ने बुक्का मार दिया. Okay, that's an owl, right? And it has got a very scary and a starry look. That is why there are many superstitions based on owls. पता है ना, राजस्थान साइड में ऐसे माना जाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते भी है, बिकॉज ऑफ विच दिस बर्ड इज नाउ इन डेंजर. अभी जैसे दिवाली फेस्टिवल गया, पीपल बिलीव दैट ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल वहां गांव के आसपास जो आउल्स मिलते हैं ना, द विलेजर्स कैच दोज आउल्स एंड ब्रिंग इट टू देयर होम. उनका मानना यह है कि अपने माइथोलॉजी के हिसाब से लक्ष्मी जी का वाहन है आउल. So they believe कि if I catch an owl and bring it to my home, goddess Lakshmi has to come to my home. ये सोचकर वो लोग आउल को पकड़ लेते हैं. See the level of superstition. Okay, but they are very active and उनका eyes बहुत sharp होते हैं. चूहे वगैरह कैसे पकड़ लेते हैं बराबर एकदम. Correct. And there are different types of owls actually. Okay, this is another very interesting bird. एक बार है ना, हमारे बालकनी के बाहर आउल आके बैठा था, बहुत देर Wow. बैठा था, 3-4 आवर्स वैसे ही. अच्छा, तो did you stare at it? हाँ, नहीं? कुछ नहीं करा था हमने तो, Yeah. फोटो भी लिए तो भी उड़ नहीं गया. Yeah, right. Actually, the owl generally is not in danger. तो मेरी Other सिस्टर creatures. बोल रही थी कि देखो उसके पास लेटर होगा, लेटर होगा. अरे वाह, क्या हैरी पॉटर है क्या? ऐसे ही मजाक. Okay, yeah. But actually, that is a point correct. कि passenger pigeon करके एक type है. It was used to transport letters and messages in the earlier days. है ना, passenger pigeon करके बोलते हैं. अभी वो extinct हो गया मैंने सुना. Right? And ये देखो, shrike, bird कितना बढ़िया दिख रहा है. But इसका खास बात क्या है पता है? It is also called as the butcher bird. Butchering मतलब हलाल करने का, पता है? This bird has got a very interesting adaptation. वो जो भी प्रे को पकड़ते हैं, चूहा या कोई भी इंसेक्ट होगा, वॉट एवर इट इज, वो एक पेड़ पे, अकेशिया जैसे ट्रीज होते हैं जिसमें थॉर्न्स होते हैं, शार्प स्पाइन्स, वो अपने प्रे को उसमें दबा के रखते हैं. सी दिस, जो ट्री का स्पाइन्स है, थॉर्न्स है, उसमें टांग के रख दिया. तो wherever this bird will be found ना, उसके आसपास के ट्रीज में देखना बहुत सारे डेड बॉडीज मिलेंगे. This bird feeds on it whenever the time is there. इवोल्यूशन में सोचो ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुआ, कितना भी हम साइंटिफिकली सोचे, द मिस्ट्री स्टिल देयर. करेक्ट. So these are some examples of birds that can fly. ये देखो. Now these are examples of birds which cannot fly, the flightless birds. Okay, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? ऑस्ट्रिच, यू नो, ऑस्ट्रिच का जो फेदर्स है ना, दे आर फायर प्रूफ. इट कैन वॉक इन द फायर, कुछ नहीं होगा उसको. ओके, एंड ऑस्ट्रिचेस, उसके अंडे के सामने जाओ तो बहुत अच्छे से लात पड़ेगा. ऑस्ट्रिचेस कैन किक. ओके, सो इट विल गिव अ नाइस किक. तो इमेजिन वो भी इवोल्यूशन में डेवलप हुआ है कि मेरे बच्चे के पास आएगा तो लात पड़ेगा. करेक्ट. यस, वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, द एम्परर पेंगुइन. पेंगुइन्स के भी बहुत टाइप्स हैं. द एम्परर पेंगुइन इज द लार्जेस्ट वन. ओके, एंड मोस्ट जायंट क्रीचर्स होते हैं, एंड वेरी नाइसली टेक्स द यंग वंस इन देयर आर्म्स, एंड पानी में अच्छे से डाइव मारते हैं, पानी के बाहर डाइव मार के स्नो पे गिरते हैं. इसके वीडियोस देखो, बहुत सुंदर है. ओके, कीवी बर्ड, अ टाइनी वन, अगेन अ फ्लाइटलेस वन, राइट. एमू, यू नो दैट. ऑस्ट्रिच से थोड़ा सिमिलर है, बट दिस इज मोर इलोंगेटेड टाइप. ओके, टर्की, वेस्टर्न कंट्रीज में एक फेस्टिवल आता है थैंक्स गिविंग डे करके. तो दिस इज वन ऑफ द बर्ड्स दैट आर ईटन, इसका फ्लैश खाया जाता है. ओके, टर्की. इवन डक. ओके, इसके वेब्ड फीट है, वेरी कैरेक्टरिस्टिक, एंड पानी में वो ऐसे स्विम करते हैं, सिर्फ ऐसे पैर हिलाते हैं, ऐसे पूरा उड़ते हुए नहीं लगेगा. इट विल फील एज इफ इट इज फ्लोटिंग इन द
वाटर, टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा रहेगा। ओके, सो एनी अदर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लाइटलेस बर्ड का? सोचो, ठीक है, मिलेंगे एग्जांपल्स। नेक्स्ट, बर्ड्स का नेस्ट बनाने का टैलेंट, डिफरेंट वेज इन विच दे मेक द नेस्ट। करेक्ट, जैसे ये टेलर बर्ड, नाम भी सही रखा है, 2 लीव्स को फोल्ड करके दे स्टिच द नेस्ट, ऐसे एकदम सिला दिया देखो, एंड बढ़िया सा कप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया यूजिंग द लीव्स इनसाइड विच दे आर कीपिंग द यंग वंस। सोचो ये टैलेंट कहां से सीखा होगा? ओके, दिस इज कॉल्ड वीवर बर्ड। टेलर अलग है, वीवर अलग है। वीवर बर्ड ऐसे उल्टा नेस्ट बनाते हैं। इमेजिन नेस्ट उल्टा बना रहे हैं, ओपनिंग नीचे से है, फिर भी यंग वंस कभी बाहर नहीं गिरते। द ओपनिंग इज थ्रू हियर बट देयर इज अ डिप्रेशन, दैट इज वेयर दे कीप द यंग वंस। उसके पीछे रीजन ये है कि दिस कीप्स द यंग वंस सेफ फ्रॉम प्रेडेटर्स। इस टैलेंट के साथ वो लोग नेस्ट बनाते, सोचो। ओके, द ककू बर्ड, ये तो पता ही है, 3 इडियट्स वाला, लाइफ बिगिंस विद मर्डर, है ना? वो अपना खुद का नेस्ट कभी नहीं बनाते हैं, एंड द ककू यंग वन विल हैच आउट एंड इट विल किक अवे द अदर यंग वंस। ओके, एक और इंटरेस्टिंग है वुड पेकर। इमेजिन क्या बीक होगा उसका, कि लकड़ी को तोड़ तोड़ के अंदर खड्डा करते हैं एंड उसमें यंग वंस को रखते हैं। करेक्ट, इसका ये देखो, कभी यूट्यूब में वीडियोस देखो एंड जस्ट लिसन टू द साउंड। wherever there are woodpeckers in a forest and when it is pecking at the wood, एकदम टर करके आवाज आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि टक 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 टक, टर करके आएगा। मतलब इन अ सेकेंड, इन अ मिनट इतनी बार वो टोक मारते हैं लकड़ी को कि ऐसे एकदम आवाज आती है। इमेजिन उसके बीक में क्या मजबूती रहेगी। वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन। ओके, दिस इज कॉल्ड गोल्डन ओरियोल, ऐसे यंग वंस देखो। एंड दिस इज द बॉल्ड ईगल। इसका तो पता ही है कि इसके आसपास गए तो खत्म, it will peck you and puncture you like anything. Okay, so like this you can see a lot of talent. The most common one, अपने house sparrow, अपने चोच में कहीं से सूखा घास वगैरह सब उठा के लाकर it will make a nice cozy nest. उनको 2 BHK फ्लैट कुछ नहीं चाहिए, just some small nest जहाँ पे young ones fit हो जाए बस। Correct, so it is not an easy thing to do. So we human beings destroy many nests very easily, so that is creating problem for us. Understood about class aves properly? Okay, so we move on to the last group under animals, that is the class Mammalia. Okay, so mammals are supposed to be the most advanced group of animals, the evolutionarily most advanced ones. We also belong to this. So the word Mammalia has come from the word mammary glands. Okay, the word mammae stands for breast, which contains the mammary glands. इसीलिए इसको मैमेलिया बोलते हैं, because this is the only group which contains the presence of mammary glands. Okay, so क्या unique features होंगे? सबसे पहले, these are the animals which are widely distributed. You will find them in a vast variety of habitats. Okay, they are again homeotherms, जैसे एव्स का बोला था, warm-blooded animals. Okay, and they have mammary glands or the breast present. This is a unique point. What is the reason behind this? Till birds, they did not have any such feature. Mammals are the first ones to have this and the only ones to have this. क्या reason है? To give nutrient to young ones. Yes. So why birds and all other animals did not have it? Because वो एग में रहते हैं तो उनको sufficient nutrients मिल जाते हैं. Yes, because till birds, the animals are oviparous. They lay the eggs and the eggs contain the nutrition for the young one.
but in mammals they don't lay eggs, they directly give birth to young ones. So that is why the young one is dependent upon the mother only for nutrition, and that is why these modified glands are provided to the females. Okay, here the exoskeleton can be hair or can be fur. Okay, it can be either hair or fur in these animals. Okay, endoskeleton consists of bones which are solid. Okay, compact bones. And another unique feature for mammals, that is the presence of the external ear or the pinna. ये सिर्फ mammals में है. Till birds, no animal were having this. External ear or the pinna is found only in mammals. Okay, and respiration के लिए they have lungs. The heart is four-chambered. Mammals are also unisexual. Again, there is a good degree of sexual dimorphism between males and females. They are viviparous, but exception is this animal. एक बहुत ही unique से interesting animal है, you know this. The duck-billed platypus. जब भी first time ये animal discover हुआ था, people were under the assumption कि इसका जो beak है ये कुछ बाहर का चीज है जो उसके मुंह में फंस गया. But it is a part of the body. Okay, and this one lays eggs. So this is a connecting link. You remember that in evolution we have learned. Connecting link between aves and mammals. So इससे prove होता है कि aves have evolved to give rise to mammals. Okay, internal fertilization होता है. Direct development, that means there is no larva, pupa or something. Directly young one develops into adult. And parental care is of the highest degree, in which we human beings also come into picture. Okay, our parents also take care of us to a large possible extent. Correct. And दूसरे behavioral aspect क्या होंगे? जैसे birds में था courtship behavior, even in mammals. Okay, including human beings. Right, all the different aspects or behaviors shown by the males in order to attract the females. Okay, तो यहाँ पे males के बीच में interesting aspect है, males fight. Okay, elephants, lions and all, उनका अपना अपना territory होता है, ये मेरा इलाका है. यहाँ पे दूसरा मेल आ गया तो गारू का भी ना. हाँ, yes. Okay, so they will fight like anything. The female just sits and watch, लड़ो. Okay, ये nature का खेल है, right? Migration, mammals also migrate in large numbers. Okay, hibernation, polar bears वगैरह सो जाते हैं पूरे winter season में. Okay, feeding behaviors, some are herbivores, some are carnivores, omnivores, वो सब example हमने देखा है. Okay, and mammals also can do mimicry. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें मैमल्स में भी देखने को मिलता है. बट हैव यू ऑल अंडरस्टूड द यूनिक पॉइंट्स अबाउट क्लास मैमेलिया एवरीवन? ओके, सो एग्जांपल्स देखो अभी. सी दिस, अलग अलग ग्रुप्स हैं मैमल्स के. तो वन ग्रुप इज कॉल्ड द मार्सुपियल्स. मार्सुपियल्स का मतलब है दोज मैमल्स व्हिच कैरी द यंग वंस इन देयर पाउच. ओके, एब्डोमिनल रीजन में एक पाउच रहेगा, लाइक दिस इज वन, यू नो, कैंगरू. तो यंग वन विल बी कैरीड इन दैट पाउच. ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं मार्सुपियल्स. तो उसमें कैंगरू इज वन एग्जांपल. बिसाइड्स दैट दिस इज ओपोसम. ओके, ये है वॉम्बैट. ओके, दिस इज पिग्मी पॉसम. सी द साइज ऑफ द एनिमल. हाथ के ऊपर बैठा हुआ है, a tiny one. Okay, and this is an animal called bilby. तो ये सब examples याद रख सकते हैं for marsupials which carry the young ones in their pouch. Understood? Okay, where is kangaroo found? Where are they found? Australia. Australia and one more place. और कहाँ मिलते हैं kangaroos? There's another country very near to Australia, that is Tasmania. वहां मिलेगा.
ओके, टैस्मेनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मेनली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन यस, अंडर मैमल्स ओवरऑल देयर आर टू ग्रुप्स, ओके, जो हमने एवोल्यूशन में भी देखा था, इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ देम इज कॉल्ड नॉन प्राइमेट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड प्राइमेट्स। यू रिमेंबर इवोल्यूशन कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन के टाइम पे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, व्हेन नॉन प्राइमेट्स इवॉल्व टुवर्ड्स प्राइमेट्स, द मेजर डेवलपमेंट ऑफ द चेंज was that the eyes came to the front, from the sides to the front. ओके, सो यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स में एग्जांपल्स आएंगे, बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स हैं। दिस वन इज सांबर डियर, सांबर बोलते हैं, डियर के बहुत सारे टाइप्स हैं, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, मस्क डियर, राइट, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो दिस इज सांबर, नील गाय करके भी बोलते हैं। ओके, एक और है दूसरा, अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट लुक्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन एलिफेंट। Okay, there is one elephant variety you find in Thailand also, white elephant, Thailand का बहुत famous है। So these are the largest land mammals, elephants, and you know very well, wild elephant उनसे कभी पंगा नहीं ले सकते, they are always in a herd and they also take care of the young ones like anything. All the female adult females will take care of the young elephants very nicely। उससे related कितने अच्छे अच्छे videos भी आते हैं। You see the young elephants, how clumsy they are, चलते चलते स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पानी में कूदेंगे, खड्डे में गिर जाएंगे। ऑल द यंग एडल्ट एलिफेंट्स विल टेक केयर। ओके, जिराफ, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल। इसमें हमने एक थियरी पढ़ा था एवोल्यूशन में, यू रिमेम्बर, लैमार्किज्म, है ना, कि नेक उसका क्यों ऐसे लंबा हो गया करके। तो देयर इज नो फिक्स्ड आंसर फॉर इट, बट यू कैन सी दिस एनिमल, राइट, एंड कैसे दौड़ता है, कितना लंबा नेक के साथ। एंड जिराफ का एक इंटरेस्टिंग ये है, दिस इज अ हर्बीवोर। So when there are many giraffes and all of them are near a water body, they want to drink water. So if all of them wants to drink the water, इतना बड़ा नेक ऐसे नीचे लाके पानी पीना पड़ता है, तो वो लोग कैसे प्लान करते हैं? They have to spread open the legs so that they can bring the neck down and drink water. But ऐसे पोजीशन में they are very vulnerable to predators. कि अगर उस टाइम पे प्रेडेटर आ गया तो फटक से सीधा खड़ा होकर भागने में उनको टाइम लगेगा, they can be attacked. So that's why giraffes क्या करते हैं, suppose there are 5 or 6 giraffes, only one will remain standing position, वो पानी नहीं पिएगा, all the others will drink at that time. The one giraffe will keep a watch, कि अगर कहीं पे प्रेडेटर नजर आया, अगर कहीं पे प्रेडेटर नजर आया तो it will alert the others. Okay, यहाँ पे कोई प्रेडेटर है, be careful, so that others will get the time to just scare away. Okay, just hold on one second. Hello, हाँ सिद्धि, क्लास के बाद फोन करूँ मैं? हेलो, हाँ सिद्धि, मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ। हाँ मैं क्लास में हूँ, इसमें क्लास होती है, मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, यस। ओके, सो दैट्स हाउ एनिमल्स आर adapted so well, right? ये देखो, ये एक और एनिमल, दिस इज कॉल्ड द पैंगोलिन। नाउ दिस शुड बी नोन टू एवरीवन, एंड बिकॉज दिस इज सस्पेक्टेड टू बी द सोर्स ऑफ कोविड-19। चाइना में लोग इसको खाते हैं, एंड ये माना जाता है कि इसको खाने की वजह से, दिस एंड द बैट्स, इन दोनों में बहुत सारे वायरसेस होते हैं। चाइना में ये खाए, इसके वजह से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है। दैट इज पैंगोलिन। ओके, यस। देन पैंथर, सी द कलर, रात के टाइम पे अगर आ गया सामने तो कैसा लगेगा? नाइस डार्क ब्लैक। ओके, आईज विल बी शाइनिंग। ब्लैक कैट ऐसी सेम दिखती है ना? यस, ये उसका बड़ा वर्जन है। ओके, एंड ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है, कॉल्ड आर्मडिलो। इसके शरीर पे देखो कैसे बड़े बड़े प्लेट्स और आर्मर्स होते हैं। पुराने जमाने में बॉडीगार्ड्स नहीं क्या रहते थे,
अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए, हाँ, स्टील का बना हुआ आर्मर्स वगैरह पहनकर, इट लुक्स लाइक दैट, इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्मडिलो. ओके, वेरी यूनिक. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्राइमेट्स. ठीक है, ओके. देयर आर 8 मिनट्स रिमेनिंग, हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, एंड देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे, बिकॉज 10-15 मिनट्स के लिए नहीं करते कंटिन्यू. ये पार्ट हो जाएगा मैमल्स का. नेक्स्ट टाइम वी विल बिगिन विथ न्यू लेसन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है प्राइमेट्स. हाँ, नॉन प्राइमेट्स के और एग्जांपल दिए, वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स. ये देखो, पोलार बेयर, स्नो वाइट एकदम, करेक्ट. लामा, सी दिस एनिमल, कभी देखा है? लामा एक एनिमल है जो माना जाता है इट हैज गॉट द लॉन्गेस्ट टंग. लामा का लॉन्गेस्ट टंग है, ऐसा बोलते हैं. ओके, इसका कार्टून था कुछ. क्या था? कार्टून. हाँ, यस, राइट. बैट्स ऑल्सो यू नो, उसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं. सम ऑफ देम आर फ्रूट ईटिंग वंस, सम ऑफ देम आर वैम्पायर बैट्स जो ब्लड सक करते हैं. ओके, बट दे आर एक्टिव एट नाइट, एंड इसका उल्टा लटकने का, रात के टाइम पे उड़ने का, ये सब एकदम यूनिक चीज है. तो हॉन्टेड प्लेसेस के साथ एसोसिएट किया जाता है उसको, राइट. एंड स्नो लेपर्ड इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में देखने मिलेगा. अरुणाचल प्रदेश में सब जाएंगे तो यहाँ स्नो लेपर्ड मिलता है देखने को. ओके, ब्यूटीफुल क्रीचर. एंड ये बहुत ही कडली, एकदम स्टफ टॉय जैसा लगेगा. कॉल्ड कोआला बेयर. ओके, स्पेक्टेकल्ड बेयर भी बोलते हैं. सी द कलर्स, मस्त दो कान एकदम से ब्लैक कलर के, एंड आंख के पास एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही स्टफ टॉय मिलते हैं. बट दे आर वेरी लेस इन नंबर नाउ. ओके, ये सिर्फ बैम्बू के शूट्स खाते रहते हैं, उनको दूसरा कोई काम नहीं है लाइफ में. ओके, चाइना जापान में मिलते हैं. पॉर्क्यूपाइन्स, सी द एडेप्टेशन, कि कोई मेरे पास आएगा तो चो पंक्चर, क्विल्स होते हैं उसके पीछे, करेक्ट. सो दैट इज अनदर अडेप्टेशन. मतलब सब में देखो किस लेवल का डाइवर्सिटी डेवलप हुआ है खुद को बचाने के लिए. ओके, सो नेचर में सर्वाइव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, करेक्ट. सी दिस प्राइमेट्स. ओके, अभी प्राइमेट्स में क्या क्या है फीचर्स, एग्जांपल क्या है? या प्रणव, यू आर करेक्ट. दैट इज अ जाइंट पांडा, राइट राइट, गुड, यू पॉइंटेड आउट. यहाँ पे एक लेबलिंग गलत हो गया है. हाँ, दिस इज जाइंट पांडा, कोआला बेयर्स नहीं है. मैं नाम बदलता हूँ. दैट इज अ जाइंट पांडा विच इज शोन. मैं भी अभी वही बोलने हाँ, वाली थी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, गुड. जहाँ कोआला बेयर ग्रे कलर का होता है, वो भी ऐसे ही कडली दिखते हैं, बट दैट इज डिफरेंट. ओके, थैंक्स प्रणव, गुड. आई चेंज दैट एंड पास ऑन टू यू. ठीक है, यस. प्राइमेट्स, द हाईएस्ट इन द एवोल्यूशन. ओके, तो उसमें एग्जांपल देखना, गोल्डन लंगूर. ओके, स्नेहा तो लंगूर को सामने से देख चुकी है. दैट वाज हनुमान लंगूर, ये वाला ही आया था ना, राइट. इट हैज गॉट द लॉन्गेस्ट टेल. हाँ, पूरा Yes. टूटने. Yes. Okay. And this is golden langur. See the color, right? Golden color में black face. This is another one called lion-tailed macaque. इसका जो tail है वो एकदम lion की तरह. Okay. ये देखो, दिन भर काम करके थक गया है तो बैठ गया सर पकड़ के. That is orangutan. Okay. ये इंडोनेशिया में बहुत मिलता है. इसके भी नंबर काफी कम रह गए. Okay, because of these artificial plantations and all बहुत कम होते जा रहे हैं. But again, they are very beautiful and they are very intelligent creatures. Okay, primates में जो apes हैं, they are the most closest to our ancestors. उन्हीं में से हम लोग develop हुए हैं. Like we have seen human evolution. So these are the apes, orangutans, gorilla, chimpanzee. Chimpanzee आपसे सबसे closest cousin है, you know that. Just 2% difference in the genes. Correct? Gorillas are giant creatures. एंड ये देखो इसका नाक देख, प्रोबोसिस मंकी. ओके, ऐसे एकदम खींचा हुआ नाक लगता है. ओके, दैट इज व्हाई द नेम इज प्रोबोसिस. ये प्रोबोसिस बोलते हैं उसको. एंड दिस इज हनुमान लंगूर. सो लाइक दिस देयर आर इनॉर्मस नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, प्राइमेट्स में. एंड देन दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक मैमल्स. ओके, तो इसमें डॉल्फिन, यू नो.
Okay, beautiful creatures and they are very pleasant creatures. Whistling करते हो. ये है sperm whale and blue whales. बहुत सारे टाइप के whales होते हैं. Blue whale is the largest mammal. Okay, and this is one animal called dugong, जो इंडिया में अंडमान निकोबार में मिलते हैं. वहाँ का स्टेट एनिमल है ये, the dugong. Okay, and sea lions, walrus, इसके भी टस्क होते हैं एलिफेंट्स की तरह. So these are all aquatic mammals. ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है सर. And okay, I think we are done. Okay, so like this mammals के केस में देखा जाए तो there is no end to the number of examples. We have seen enough of them. So remember as many examples as possible, and as soon as the name of an animal is given, you should be able to identify to which group it belongs. Okay, that is very important. Any doubts or any queries you are having with respect to this lesson? Sir, बोलो. next chapter कौन सा हाँ, लोगे? correct. So I just wanted to discuss that. ये confirm कर लेते हैं and then we can stop for the day. 2 minutes are remaining. Next कौन सा करना है बताओ. आनंदिता ने सजेस्ट किया सोशल हेल्थ करते हैं करके. What about others? We are left with 2 important lessons, that is cell biology and biotechnology, and दूसरा है I think introduction to microbiology. So हाँ Sir, तो introduction to microbiology. microbiology. Okay. See, social health भी ऐसे देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू डू एवरीथिंग, नॉट एन इश्यू, बट आई फील कि इंपॉर्टेंट लेसन पहले करे तो ज्यादा बेटर होगा. Anantita, you are sir. having social health for this coming Sir. exam? हाँ, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स निकाल के रखूंगी, वो डिस्कस कर लेंगे. Yes, yes, जरूर, no problem, anytime. See, social health अगर देखा जाए तो it is not a very big topic, because ये दोनों कैसा है ना, social health and disaster management, this discussion will go on. तो important topic करने के बाद उस पे जाएंगे तो I think ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, so we will begin with introduction to microbiology in the next lecture. And ये तुम लोग के लिए थोड़ा easy पड़ेगा because we have already seen harmful and useful microbes in 9th standard. वो लेसन ऑलरेडी किए थे 9th में, करेक्ट. तो दिस इज समवॉट सिमिलर, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. फिर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, ये बाद में करेंगे. तो विल गो इन द सेम ऑर्डर 7, 8, 9, 10. वी विल एंड द एकेडमिक ईयर विद डिजास्टर. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू. नेक्स्ट वीक में लेता हूँ एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. तो आई विल सजेस्ट एवरीबडी 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स जो लेसन था वो जस्ट गो थ्रू करके आओ, जस्ट रीड एंड रिवाइज वंस. उसके बाद उसी से रिलेटेड वी विल कंटिन्यू विद माइक्रोबायोलॉजी. ओके, ये संडे को टेस्ट होगी. यस, आई वाज कमिंग टू दैट, बिकॉज़ अभी बहुत गैप हो गया है. कौन? वो हाँ, दिस संडे. यस, बोलो जल्दी बोलो, क्या रखना है? एनवायरमेंट मैनेजमेंट ना, 5th लेसन. नाम बताओ जल्दी. नहीं, वो हो गया. तो अभी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी फुल लेसन चलेगा. इकोनोडर टुवर्ड्स ग्रीन. वो बाकी है ना. अच्छा, ओके, वो है क्या? Yes. मुझे लगा कि एनिमल क्लासिफिकेशन. नहीं नहीं, ये बाद में आएगा ना, वो तो अभी अभी किया मैंने. टुवर्ड्स सर ग्रीन जो एनर्जी. पार्ट सर उसमें से जो एक मिनट. कैंसिल हुआ है वो भी, उसमें से भी क्वेश्चन सब डालोगे? Yes, yes, I will put. Study everything, don't worry. Textbook से ही रहेगा जो भी है. ठीक है. Okay, the time is getting up. We will wind up for today. Don't need to join back again. ठीक है. इसका ये लेसन का भी PDF वगैरह भेज देता हूँ मैं. Okay. So we'll meet next week. Bye everyone. Prepare well for Sunday. ठीक है. 11 o'clock on Sunday. Yeah.